फिलोसफी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मटेरियल फिलोसफी और दूसरा होता है स्पिरिचुअल फिलोसफी। क्या होता है? व्हाट इज मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी? वुड बी टेलिंग मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी बेस्ड ऑन, इसका क्या मतलब? हम्म बेस्ड ऑन मटेरियल थिंग, व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी? संसारिक मोह माया। एनीथिंग एल्स कोई बोलना चाहता है? We are talking about materialistic and spiritualistic philosophy. ये लिटमस टेस्ट कहीं और लिखा हुआ है इसके अलावा? दिख रहा है कहीं? अच्छा। हाँ। This is known as litmus test. There are 28 questions. If you are able to do 14 question, 100% I will be writing you are cracking UPSC. फर्स्ट डे हमने किया था, 4 क्वेश्चन में से एक भी आंसर नहीं मिला था। ठीक है, टेक डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, assertion region. Take down in the notebook. In the beginning, Sankhya school of philosophy was materialistic. Then it tended to be spiritualistic. In the beginning, Sankhya school of philosophy was materialistic. Then it tended to be spiritualistic. Reason: according to early Sankhya philosophy, the world owes its creation to nature or prakriti. But around the 4th century AD, the creation of the world was attributed to Purush along with Prakriti. Okay, so two statements are there, assertion and reason. On the very first day, we discuss how to solve them. There are 4 no, instructions. If both statements are correct, and the second one explains the first one, A would be the answer. If both are correct, but reason part does not satisfy the explanation of assertion part, B would be answer. If A is wrong, D would be answer.
or if R is wrong, C would be answer. This is how you have to solve it. This is instruction how you will be solving this question. The codes are there. You have to choose one, A, B, C, or D. What will be the answer? Who will be telling answer and explaining it? Sneha. और कोई बताइए. ट्राई करिए. एनीबॉडी इन द क्लास? हाँ, डी. डी नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, मतलब विथ लॉजिक ना. इट इज ऑल अबाउट लॉजिक. हाँ, हाँ नहीं मतलब, हाँ ठीक है. आंसर बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए. हाँ, डी. ठीक है, लगता है जनरली हिस्ट्री को माना जाता है कि कोई भी पढ़ लेगा. ऐसा है क्या? मतलब जिसको कुछ भी पढ़ाने नहीं आता है वही हिस्ट्री पढ़ाता है, ऐसा भी माना जाता है. और जिसको कुछ पढ़ने नहीं आता है वो हिस्ट्री पढ़ता है, ऐसा भी माना जाता है. ऐसा है नहीं है. हिस्ट्री जो है प्योर मैथ्स का गेम है. इसलिए आईटीएन सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं हिस्ट्री में. हिस्ट्री को समझना इतना आसान नहीं है. नाम याद करना, अभी जैसे कई सुबह कुछ लोग आके बोले याद नहीं हो रहा है. याद करना ही नहीं है. अब इनका नाम मुझे याद हो गया, पहली बार बात हुआ. पूछिए. फरमान नाम है ना. देखिए. नाम कैसे याद होगा? जब पॉजिटिव एनर्जी दोनों तरफ से आएगी तो नाम याद हो जाएगा. उसी तरह बुक्स भी जब पढ़ते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, स्माइल के साथ पढ़िए. दोस्ती करनी होगी ना किताब से. 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, याद करेंगे तो कुछ याद नहीं होगा. ठीक है. नाउ सी, what is this? The question is saying that in the beginning Sankhya school of philosophy was materialistic philosophy. Then it tended to be a spiritualistic. According to early Sankhya school, early means beginning, the world owes its creation to nature or prakriti. Means the philosophy which believes that the world or the universe is created by nature, matter, is materialistic philosophy. Is it clear? Created by nature, prakriti or matter is materialistic philosophy. And if the universe or world has been created by some supernatural power, God, it is a spiritualistic philosophy. So simple. So take down. Materialistic philosophy means the philosophy which believes that the universe or the world has been created by prakriti, nature. The God is no role to play. God has no role to play in this. The materialistic philosophy believes that the universe or the world has been created by nature. The universe or the world has been created by nature. And a spiritualistic, है ना? And a spiritualistic philosophy believes that the universe or the world has been created by some supernatural power or God. Supernatural power or God.
दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। डिटरेंट थ्योरी, हैव यू हर्ड अबाउट डिटरेंट थ्योरी? पॉलिटिकल साइंस वाले जानते होंगे। निष्कर्ष, व्हाट इज डिटरेंट थ्योरी? पनिशमेंट, एक थोड़ा अलग बात समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए, काम आएगा। हाँ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, थ्री टाइप्स ऑफ रिट्रीब्यूटिव, टेक डाउन समवेयर इन फुट नोट, रिट्रीब्यूटिव, डेटरेंट एंड रिफॉर्मेटिव। रेट्री, RETRIBUTI, रेट्रीब्यूटिव, रिट्रीब्यूटिव, रिट्रीब्यूटिव, डेटरेंट, deterrent and reformative. These are the three types of punishments. Punishment समझ रहे हैं ना? जुडिशियरी है ना, comes with punishment. हाँ? Reformative, reformative. ठीक है, अब ये क्यों समझा रहे हैं? जैसे उनको मैंने अभी डांटा है क्लास में, तो थोड़ा उदास बैठे हैं, ठीक है। तो मैं वही समझा रहा हूँ। रिट्रीब्यूटिव मीन्स, रिट्रीब्यूटिव कहते हैं, किसको कहते हैं रिट्रीब्यूटिव? रिट्रीब्यूटिव में होता है कि C बराबर P, क्राइम इज इक्वल टू पनिशमेंट। जितना क्राइम उतना ही पनिशमेंट, ये रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट। मतलब इफ somebody has broken your hand, his hand should be broken. हाँ, ये मेडिवल सोसाइटी में ऐसे ही होता था, अभी भी कुछ कुछ मिडिल एशिया में कुछ कंट्रीज में होता है हार्श पनिशमेंट, ये रिट्रीब्यूटिव है। दूसरा डेटरेंट है। डेटरेंट में होता है कि जो पनिशमेंट होता है वो क्राइम से बड़ा होता है। पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट इज ग्रेटर देन क्राइम, इसको डेटरेंट कहते हैं। तीसरा होता है पनिशमेंट इज लेसर देन क्राइम, ये रिफॉर्मेटिव होता है, ठीक है। जितने मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, मॉडर्न जो थिंकर्स हैं, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, वो किसकी तरफ जाएंगे? रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्मेटिव। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि हर आदमी में एक ईश्वर है, तो आप हत्या करेंगे तो ईश्वर की हत्या होगी, तो उसको रिफॉर्म करना है ना। गांधी कहते थे कि बद से दूरी बनानी है, बदनाम से नहीं। रॉन्ग डूअर, इविल डूअर शुड नॉट बी पनिश्ड, है ना। डोंट मेक डिस्टेंस फ्रॉम इविल डूअर, मेक डिस्टेंस फ्रॉम इविल्स। तो इसका मतलब पीपल शुड हैव द चांस टू रिफॉर्म देमसेल्फ, इसलिए रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट। लेकिन ये आसान है, एंड मेनी टाइम्स रिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में? तो इसलिए ये हर जगह लागू नहीं होगा। बट द पीपल हु अपोज द डेथ सेंटेंस, ये कहेंगे डेथ सेंटेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत देशों में है डेथ सेंटेंस, मेनी कंट्रीज आर नॉट हैविंग, तो इट्स रिफॉर्मेटिव, सुधारात्मक, सुधार करने के लिए। ये तो मेडिवल कंसर्न हो गया, ठीक है, कि आपने जितना क्षति किया है उसी तरह आपकी क्षति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको डेटरेंट कहते हैं। इसमें जो क्राइम है छोटा होता है, हाँ नहीं मतलब जो भी, ये कौन सा था वही। डेटरेंट में पनिशमेंट बहुत ज्यादा होता है क्राइम से। क्यों? क्योंकि डर पैदा किया जाता है। क्राइम छोटा है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए। तो ये जो थ्योरी आई थी, ये ब्रिटेन से आई थी। एक जजमेंट देते हुए एक जज ने कहा था कि लोगों ने कुछ कैटल्स चोरी किए हैं, लेकिन पनिशमेंट में बहुत हाई दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि कैटल्स की चोरी हुई है, इसलिए कि आगे कैटल्स की चोरी ना हो। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए इसको कहते हैं क्या? डेटरेंट, डेटरेंट, ठीक। तो डेटरेंट हमेशा नजीर
प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि आगे ऐसा नहीं। एक कोई रेपिस्ट है, उसको सिवियरली पनिश कर दीजिए, आगे फिर इस तरह की घटनाएं कम होंगी कि नहीं, कम हो जाएंगी, बस यही। तो मेटलिस्टिक फिलोसफी एंड विच वन, अब देखिए क्या कर रहा है, इन द बिगिनिंग सांख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी। व्हाट इज सांख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी, व्हाट इज दिस? इंडिया में इन गुप्ता पीरियड, बाय गुप्ता पीरियड 4th सेंचुरी तक आते आते 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आए, 6 स्कूल्स, जिसको षड दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? षड दर्शन। योग है, सांख्य है, मीमांसा है ना, न्याय है, वैशेषिक है, तो और पूर्व मीमांसा एंड लेटर मीमांसा, तो या जिसको लेटर मीमांसा को वेदांत दर्शन कहते हैं। तो 6 स्कूल्स हैं। ये सारे कैसे स्कूल्स हैं? ये सारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं। और ये जो स्कूल्स हम देख रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये क्या है? हेट्रोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। तो ये जो दर्शन है, सांख्या दर्शन, इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि इन द बिगिनिंग सांख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज मेटलिस्टिक, देन इट टेंडेड टू बी स्पिरिचुअलिस्टिक। इन द बिगिनिंग इट सेड दैट the world is not created by some supernatural power, created by nature. It means that there is no role of supernatural power or God in the creation of the world. Therefore, it's a materialistic philosophy. But after some times, it said that the Purush is also to play some role with Prakriti. Now, this Purush means, पुरुष के दो अर्थ होते हैं, God और एक जो साधारण पुरुष होते हैं। तो here पुरुष मतलब supernatural power which is beyond this world. Got the point? So Purush plus Prakriti, when they come together, nature is the universe is created. It means that you are accepting the role of supernatural power. So in the beginning it was materialistic philosophy, later on it is spiritualistic. समझ में आई बात? तो इस तरह से चीजों को समझना है, ठीक है।